Hello and welcome to Pre Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to discuss Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth. Now let's start. It is an essay composed by Wordsworth, published in the second edition in 1800 of Lyrical Ballads. तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? Lyrical Ballads कब publish हुआ था? Lyrical Ballads जो फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था? It was published in 1798 and the Preface to Lyrical Ballad is the second edition which is published in the year 1800. Basically क्या है ना कि Lyrical Ballads का जो ये preface है वो जनवरी 1801 में पब्लिश हुआ था बट हम लोग उसे 1800 ही कहते हैं. So the second edition was published in 1800. The essay's opening lines, the first volume of these poems has already been submitted to general perusal. It was published as an experiment, which I hope might be of some use to ascertain how far, by fitting to metrical arrangement a selection of the real language of men in a state of vivid sensation, that sort of pleasure and that quantity of pleasure may be imparted which a poet may rationally endeavor to impart. So ये these are the opening lines. इसमें क्या कहा गया है? ये जो है it is the real language of men. यहाँ पे क्या लिखा है? The real language of men in a state of vivid sensation. In a state of vivid sensation, that sort of pleasure and that quantity of pleasure may be imparted which a poet may rationally endeavor to impart. Now coming to the next slide, that is, the preface was written to explain the theory of poetry, guiding Wordsworth compositions of the poems. तो ये जो preface क्यों लिखा गया था? It was written to explain the theory of poetry, guiding Wordsworth's composition of poems. As we know, Wordsworth is known as nature poets and उनका मानना था कि पोएट्री जो होती है ना वो हमारे अंदर से निकलती है, वो हमारी इमोशंस होती है, वो हमारी इंस्पिरेशन होती है. एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो साइंटिफिक चीजों में बिलीव नहीं करते थे. इनफैक्ट ही बिलीव्ड इन द इनर फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंस्पिरेशन. सो ये जो प्रीफेस जो लिखा गया था, इट वाज रिटन टू एक्सप्लेन द theory of poetry, guiding Wordsworth composition of poems, right? So it was written to explain the theory of poetry. Basically इसमें क्या बताया गया है कि poet कौन है, poetry क्या है, and what is the language of poetry. जैसे इनके जो starting lines थी, ये क्या लिखा हुआ है? It was published as an experiment, which I hope might be of some use to ascertain how far, by fitting to metrical arrangements a selection of the real language of men in a state of vivid sensation, right? तो it was published as an experiment and इसमें क्या बताया गया था? इसमें theory of poetry को बताया गया है. किसने बताया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है. Wordsworth defends the unusual style and subject of the poems as experiments to see how far popular poetry could be used to convey profound feelings. तो उन्होंने क्या किया है? उनकी जो पोइट्री थी वर्ड्सवर्थ ने उसमें unusual style and subject डाला है as an experiment. As an experiment उन्होंने डाला है to see, ये देखने के लिए कि how far poetry could be used to convey profound feeling. उन्होंने unusual styles and subject को डाला है पोएम का as an experiment to see how far poetry could be used to convey profound feelings, right? Now coming to the next slide, that is, here Wordsworth defines his aesthetics as, I have therefore altogether declined to enter regularly upon these defense. So उन्होंने क्या define किया है? I have therefore altogether declined to enter regularly upon this defense. So उन्होंने ये define किया है अपने aesthetics में, right? In his preface, he discusses his ideas of what the poet is, what the poetry is, and most importantly, what the language of poetry is. तो बेसिकली प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने क्या डिफाइन किया है? ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे, कि उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि ही डिस्कसेस हिज आइडिया
कि पोएट क्या है, पोएट्री क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। उन्होंने इन तीन चीजों को अपने इस प्रीफेस में बेसिकली डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द थ्री थिंग्स, दे आर जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। पोएट पोएट के बारे में पूछा है, पोएट्री है उन्होंने, एंड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। उन्होंने बेसिकली इन तीन चीजों पे मेन फोकस किया है अपने इस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1800। Coming to the next slide, Wordsworth first implies that a poet is one who arranges language expressing ideas in metrical form. This language he arranges is in a state of vivid sensation। तो वर्ड्सवर्थ का मानना क्या था कि अगर हम ना कॉमन पीपल की लैंग्वेज को यूज करते हैं पोइट्री में तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, राइट। तो उनका क्या मानना था, ये मैंने पहले की क्लास में आप लोगों को बता रखा है कि वो क्या करते थे, वो मतलब वो ना मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल के कन्वर्सेशन को अपनी पोइट्री में डालते थे, लाइक द वे दे यूज्ड टू टॉक, ये अपनी पोइट्री में वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो वर्ड्सवर्थ का यही मानना था कि अगर हम कॉमन पीपल के लैंग्वेज में पोइट्री लिखेंगे तो पोइट्री का एक बहुत ही बड़ा सा सेंसेशन होगा, राइट। सो वर्ड्सवर्थ क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट इम्प्लाइज दैट अ पोएट is one who arrange language expressing idea in a metrical form। उनका क्या मानना था कि एक पोएट वो होता है जो अपने लैंग्वेज को एक मेट्रिकल फॉर्म में अरेंज करता है। दिस लैंग्वेज ही अरेंज इज इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, एंड वो जो लैंग्वेज वो अरेंज करता है इज इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। वर्ड्सवर्थ also tells us about what a poet is not। इसमें क्या था, इस स्लाइड में उन्होंने बताया है कि व्हाट द पोएट इज, व्हाट द पोएट्री इज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज। तो उन्होंने ये तीन चीजें तो बताई है, पर साथ में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि पोएट क्या नहीं है। ये जो पॉइंट है व्हाट अ पोएट इज नॉट, ये लाइन भी उन्होंने अपने इस प्रेफेस में डिस्कस किया है। तो ये भी लाइन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ही सेज दैट एंटी पोएट्स थिंक्स that they become honored poet this way, but really only furnished food for poor taste that has no solid bearings and is fickle। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे फूड होता है, हम लोग खाना खाते हैं, फूड हम लोग कोई अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं देन वी सी द फूड इज वेरी मच फर्निश्ड, वो बहुत अच्छे से सजा करके हमें फूड ला करके देते हैं, बट द टेस्ट इज सो बैड, राइट। टेस्ट बहुत ही बुरा रहता है। तो क्या मतलब हुआ, उतने उस चीज को सजा करके लाने का क्या अर्थ बनता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता इसका, राइट। सो उनका क्या मानना था कि पोइट्री बस तो उन्होंने सजा करके लिख दिया, जो एंटी पोइट्स उनको कहते थे वो पोइट्री सजा करके उन्होंने लिख दिया, बट उस पोइट्री में तो कोई टेस्ट ही नहीं है, एंड दैट हैज नो सॉलिड बियरिंग एंड इज फिकल, यानी कि वैसी पोइट्री का कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थ है, राइट, वो निरर्थ है। एंड वो क्या है कि ऐसी पोएट्री का कोई टेस्ट ही नहीं है। सिर्फ फर्निश्ड फूड से कुछ भी नहीं होता, पोएट्री को सिर्फ अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू जस्ट मेक इट अ फीलिंग, राइट, यू हैव टू जस्ट मेक इट अ फीलिंग, इमोशन डालना पड़ता है उसमें, फीलिंग्स डालनी पड़ती है उसमें, इंस्पिरेशन डालने पड़ती है उसमें, जो कि वो खुद के अंदर से निकलता है। वर्ड्सवर्थ का क्या मानना था, वो साइंटिफिक चीजों में बिलीव तो नहीं करते थे, वो क्या बिलीव करते थे, वो जस्ट बिलीव करते थे इमोशंस में, फीलिंग्स में एंड इंस्पिरेशंस में वो बिलीव करते थे। उन्होंने ऐसे पोएट्स जो हैं, जो जस्ट सारे कुछ तो उनका सही रहता है, वो जस्ट पोएट्री को एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, बट उस पोएट्री से कोई मीनिंग नहीं निकलती है, मीनिंगलेस रहता है, तो उन्हें वो एंटी पोएट्स कहते थे, वर्ड्सवर्थ। और उनके लिए उन्होंने क्या यूज किया था, फर्निश्ड फूड फॉर पुअर टेस्ट। उनके लिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, उन्होंने क्या यूज किया था, फर्निश्ड फूड फॉर पुअर टेस्ट दैट हैज नो सॉलिड बियरिंग्स एंड इज फिकल, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिगार्डिंग पोएट्री, वर्ड्सवर्थ implies that poetry is in part a matter of what is customary। पोएट्री क्या था, is a matter of what is customary, is a part of matter what is customary, right। सो ये लाइंस
उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या फिर भी आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। एंड मोस्ट फेमस, जो वर्ड्सवर्थ का एक फेमस डेफिनेशन है पोएट्री का, उन्होंने वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ऐड किया है, दैट इज पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. It takes its origin from emotion recollected into tranquility. Tranquility मतलब क्या होता है? शांत, शांति कहते हैं उसे। तो क्या उन्होंने बताया है, मैंने बता रखा ना अभी आप लोगों को, कि पोएट्री जो होती है ना वो हमारे अंदर से निकलती है, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे इमोशंस होते हैं उसमें। एंड उनका क्या मानना था कि पोएट्री जो है वो एक कंटिन्यूअस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है, राइट। एंड इट टेक्स इट ओरिजिन, ये जो कहाँ से निकलता है वो हमारे इमोशंस से निकलता है। एंड रिकलेक्टेड इनटू ट्रैंक्विलिटी, पोएट्री जो है वो हमारा अपना फीलिंग है, वो निकलता है हमारे इमोशन से एंड जाके वो कलेक्ट होता है ट्रैंक्विलिटी में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, poetic language is the language of common people speaking everyday expressions and expressing everyday sensations of rural people in an idealized rural life. उनका क्या मानना था कि पोएट्री जो है इट्स अ लैंग्वेज, उनका क्या मानना था, पोएटिक लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। जस्ट आप लोग ये सारे लाइंस को रिमेंबर रखिएगा। उनका क्या मानना था कि पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल स्पीकिंग एवरीडे एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेसिंग everyday sensation, right, and expressing everyday sensation of rural people and in idealized rural life. उनका क्या मानना था, इट्स द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। बताया था ना मैंने कि वो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के पीपल के कन्वर्सेशन को उन्होंने अपनी पोएट्री में डाला था, लाइक द वे दे टॉक। वर्ड्सवर्थ उन सारी चीजों को अपनी पोएट्री में ऐड करते थे। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में उन्होंने प्रॉपर्ली पोएट्री के बारे में बता रखा है। एंड मैंने अपनी स्लाइड में आप लोगों को जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डाल दिए हैं। सो अगर आप इस स्लाइड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। आप लोग प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स से अच्छे स्कोर कर पाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक प्री अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।